Hello dear students. In last lecture we have completed up to question number 22 of miscellaneous exercise of chapter vectors. Now question number 23. If a parallelogram is constructed on the vectors a vector as 3p vector minus q vector and b vector as p vector plus 3q vector and magnitude of p vector is given 2 and magnitude of q vector is also 2 and the angle between p vector and q vector is pi by 3, show that the ratio of sides is √7 is to √13. यानी एक पैरेललोग्राम है जिस पैरेललोग्राम के साइड्स हमें पता है, ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के साइड्स हमें पता है. दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD with a vector as one vector which is given 3p vector minus q vector and another vector is b vector which is given p vector plus 3q vector. These are the sides and we are going to find the ratio of the lengths of these sides, and for that information is given magnitude of p vector and q vector is 2. ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आता है. तो देखिए इसके लिए हम पहले एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज पाई बाय 3 दिया है, तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पहले हम ये निकाल के रखते हैं. यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से p वेक्टर डॉट q वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं. p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज नथिंग बट magnitude of p vector into magnitude of q vector into cosine of angle between p vector and q vector is cos pi by 3. तो p vector की मैग्नीट्यूड है 2, q vector का मैग्नीट्यूड 2 और cos pi by 3 की वैल्यू 1 by 2, तो p vector डॉट q vector आपका आएगा 2. ठीक है, अब हमें गिवन a vector is equal to 3p vector minus q vector. Therefore magnitude of a vector is equal to magnitude of 3p vector minus q vector. इसका स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ a vector होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3p vector minus q vector होल स्क्वायर. तो ये हो गया 3p vector minus q vector डॉट 3p vector minus q vector. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो. 3p into 3p is 9 magnitude of p vector whole square. p dot p is magnitude of p vector dot square minus 3p vector dot q vector minus 3p vector dot q vector और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q vector whole square, जिसमें हमें p वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, p डॉट q की वैल्यू पता है और मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर भी आपको पता है. तो हम यहाँ पे 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा माइनस ये 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर. तो देखिए ये कितना आता है, 4 9 36 माइनस 6 प्लस 4. तो ये 30 minus 2 is 28 means magnitude of a vector whole square is 28. That is magnitude of a vector is equal to 2√7. Under root of 28 means 2√7, यानी एक साइड की लेंथ हमें मिल गई 2√7. इसको हम फर्स्ट लिख सकते हैं. वैसे ही also given that b vector is equal to p vector plus 3q vector, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b vector is equal to आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ p vector plus 3q vector और स्क्वायरिंग करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b vector होल स्क्वायर is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ p vector plus 3q vector होल स्क्वायर, that is equal to p vector plus 3q vector dot p vector plus 3q vector. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. p vector dot p vector is magnitude of p vector whole square plus
3 into p vector dot q vector plus 3 into p vector dot q vector और plus 3 into 3 9 into magnitude of q vector whole square। समझ में आ रहा है आपको? तो p वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया है हमें 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 36, दैट इज 52। सबकी एडिशन 52 आएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर आया 52, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 13 4s are 52, यानी इट इज नथिंग बट 2 रूट 30। हमें रेशियो निकालना है, देयरफॉर रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स is magnitude of a vector upon magnitude of b vector, that is 2 root 7 upon 2 root 13, that is nothing but root 7 upon root 13, that is root 7 is to root 13, that is nothing but the ratio of the lengths of sides of parallelogram is root 7 is to root 13। got it? अच्छे से इसको लिख के निकालिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। Now look at for question number 24, read it and understand it carefully first. Express the vector a vector is equal to 5i cap minus 2j cap plus 5k cap as a sum of two vectors such that one is parallel to the vector b vector is equal to 3i cap plus k cap and other is perpendicular to b vector। यानी एक b वेक्टर दिया है 3i plus k, एक वेक्टर b वेक्टर को पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है, और a वेक्टर को हमें उस दोनों के एडिशन में एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट a vector is equal to c vector plus d vector, where c vector is parallel to b vector and d vector is perpendicular to b vector। इस स्टेटमेंट को समझिए पहले कि अगर हमें a वेक्टर को b वेक्टर को पैरेलल और परपेंडिकुलर ऐसे दो वेक्टर के एडिशन में एक्सप्रेस करना है, तो हमने कंसीडर किया सपोज a वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस d वेक्टर, वेयर c वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर एंड d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अब देखिए c वेक्टर अगर पैरेलल टू b वेक्टर है, देयरफॉर वी कैन से दैट लेट c vector is equal to some lambda into b vector, where lambda is constant. Therefore we can say that c vector is equal to lambda into 3i cap plus k cap, यानी c vector can be written as 3 lambda I cap plus lambda k cap। इसको हम फर्स्ट लिख के रखेंगे। अगर c वेक्टर b वेक्टर को पैरेलल है तो c वेक्टर मस्ट बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ b वेक्टर। ये b वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा और c वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया। अब d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिया है, हम d वेक्टर कंसीडर करते हैं। नाउ लेट d वेक्टर इज इक्वल टू सम x इंटू i कैप प्लस y इंटू j कैप प्लस z इंटू k कैप। ठीक है, अब क्या दिया है, बट d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, बट d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देयरफॉर वी कैन से दैट d वेक्टर डॉट b वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है
तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, 0 होता है। अब डी वेक्टर क्या है, यहां पर डी वेक्टर है x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप डॉट बी वेक्टर गिवन है आपको 3i कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, देयरफॉर वी हैव, इनका अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है x इंटू 3 इज 3x प्लस y इंटू 0 इज 0 प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू क्या आ गई, -3x। z क्या हो गया, -3x। तो d वेक्टर क्या बनता है, देयरफॉर d वेक्टर कैन बी रिटन एज d वेक्टर इज x into I cap plus y into j cap minus 3x into k cap, क्योंकि हमने z को लिखा है -3x, तो इसको लिखेंगे हम सेकंड। दिस इज नथिंग बट सेकंड। नाउ a वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस d वेक्टर। अब a वेक्टर हमें दिया है, देयरफॉर a वेक्टर क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू c वेक्टर आपका क्या है, 3 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस लैम्बडा इंटू के कैप प्लस x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप माइनस 3x इंटू के कैप। इनको कलेक्ट कीजिए, देयरफॉर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, ये 3i लैम्बडा कैप एंड xi कैप, 3 लैम्बडा i कैप एंड xi कैप, इट इज 3 लैम्बडा प्लस x इंटू i कैप प्लस y j कैप और प्लस लैम्बडा माइनस 3x इंटू के कैप। समझ में आ रहा है? दोनों साइड को कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है और लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों निकालने के बाद आपका c वेक्टर और d वेक्टर दोनों फाइनल हो जाएंगे, सब चारों टर्म्स की वैल्यू x, y, z और लैम्बडा। तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पहला इक्वेशन मिलेगा 3 लैम्बडा प्लस x इज इक्वल टू 5, इसे लिखेंगे फर्स्ट। फिर y इज इक्वल टू -2 डायरेक्टली मिलेगा और लैम्बडा माइनस 3x इज इक्वल टू भी है 5, इसको लिखेंगे सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी यहां पे फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ लिखेंगे, इसको थर्ड लिखेंगे, इसको फोर्थ लिखेंगे। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, ये ऐसे ही लिखेंगे 3 लैम्बडा प्लस x इज इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से एंड 3 लैम्बडा माइनस 9x इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करो इसको माइनस, ये प्लस ये माइनस होगा, 10x इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू आएगा -1। x की वैल्यू -1 आई तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखो, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू आएगा -3 इंटू -1 दैट इज 3। z की वैल्यू 3 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू -1 इन थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे हम इन थर्ड, तो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू -1 यहां पे रखनी है, तो 3 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 6, लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा 2। तो देयरफॉर सी वेक्टर आपको मिलेगा
इस इक्वेशन फर्स्ट में से सी वेक्टर इज लैम्ब्डा की वैल्यू 2 है तो 6 आई कैप प्लस 2 के कैप एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगी, x की वैल्यू -1 है तो डी वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखी, तो x की वैल्यू अगर -1 है तो माइनस आई कैप, y की वैल्यू -2 है तो -2 जे कैप, और z की वैल्यू 3 है तो +3 के कैप। तो देयरफॉर दिस वेक्टर a वेक्टर 5 i कैप -2 j cap plus 5 k cap, it can be written as 6 I cap plus 2 k cap plus minus I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. This vector is perpendicular to B vector and this vector is parallel to B vector. Means that can be written as, this vector A vector can be written as sum of these two vectors. समझ में आया सबको? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Now look at for question number 25. Find two unit vectors each of which makes equal angles with u vector, v vector and w vector, where u vector is given 2i cap plus j cap minus 2k cap, v vector is I cap plus 2j cap minus 2k cap and w vector is 2i cap minus 2j cap plus k cap. तो कंसिडर करते हैं, सपोज वन वेक्टर लेट a vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap be a unit vector which make angle theta with each of u vector, v vector and w vector. As a vector is a unit vector, therefore we can say that magnitude of a vector is nothing but equal to 1. a vector का magnitude 1 है। अब u vector is equal to, now u vector क्या दिया है, u vector is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap. Therefore we can say that u vector, magnitude of u vector is equal to under root of 4 plus 1 plus 4, that is nothing but 3. Also v vector is equal to given, what is v vector, I cap plus 2j cap minus 2k cap, I cap minus 2j cap plus 2j cap minus 2k cap. Therefore magnitude of v vector is equal to under root of 1 plus 4 plus 4, that is nothing but 3, and w vector is equal to, this is 2i cap minus 2j cap plus k cap. Therefore magnitude of w vector is equal to under root of 4 plus 4 plus 1, that is nothing but 3. तो magnitude of u vector 3 है, magnitude of v vector 3 है, magnitude of w vector 3 है। a वेक्टर का u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर तीनों के साथ एंगल थीटा है। नाउ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड u वेक्टर is theta. Therefore we can say that cos theta is equal to, क्या फॉर्मूला रहेगा, a vector dot u vector upon magnitude of a vector into magnitude of u vector. तो a vector क्या है, x I cap plus y j cap plus z k cap dot u vector is given 2
2i cap plus j cap minus 2k cap divided by magnitude of A vector is 1 and magnitude of U vector is 3. Therefore cos theta is equal to आएगा x into 2 is 2x plus y minus 2z upon 3. इसको लिखेंगे हम फर्स्ट. Also angle between A vector and V vector is theta. Therefore cos theta is equal to A vector dot V vector upon magnitude of A vector into magnitude of V vector. A vector है आपको xi cap plus yj cap plus zk cap dot V vector is given I cap plus 2j cap minus 2k cap upon magnitude of A vector है 1, magnitude of V vector है 3. तो इनका फिर से डॉट प्रोडक्ट लीजिए. तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos थीटा की दूसरी वैल्यू क्या आती है देखिए. cos थीटा आएगा x plus 2y minus 2z upon 3. इसको लिखेंगे हम सेकेंड. And similarly we can write angle between A vector and W vector is theta. Therefore cos theta is equal to क्या आएगा A vector dot W vector upon magnitude of A vector into magnitude of W vector, that is xi cap plus yj cap plus zk cap dot W vector is here 2i cap minus 2j cap plus k cap upon magnitude of A vector is 1 and magnitude of W vector is 3. Therefore cos theta की थर्ड वैल्यू आएगी cos theta is equal to आएगा, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 2x minus 2y plus z upon 3. इसको लिखेंगे थर्ड. अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड what will you get? This 2x plus y minus 2z upon 3 is nothing but equal to x plus 2y minus 2z upon 3. ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2z कैंसिल हो जाएगा. therefore 2x plus y is equal to x plus 2y. तो 2x minus x is x और 2y minus y is y. आपको कंडीशन मिलेगी x is equal to y. इसको लिखेंगे थर्ड. Also from सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं, सेकेंड भी cos थीटा की वैल्यू है, थर्ड भी cos थीटा की वैल्यू है. तो x plus 2y minus 2z upon 3 is equal to 2x minus 2y plus z upon 3. तो यहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली उसके बाद रखते हैं वैल्यू, हम कंपेयर करेंगे इसको. x की वैल्यू y रखनी है तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू y, तो y plus 2y minus 2z is equal to x की वैल्यू y तो 2y minus 2y plus z. तो कितना आएगा ये 2y minus 2y कैंसिल हो जाएगा. y plus 2y is 3y is equal to 2z plus z is 3z. तो आपको मिलेगा y is equal to z. इसको लिखेंगे हम 4. क्या किया समझ में आया? यहां पे x is equal to y है तो x की जगह पे हमने y लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो y is equal to z. तो आपको मिलेगा x is equal to y is equal to z from third and fourth.
तो देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/3, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 1/√3। तो जैसे a वेक्टर को हम लिख सकते हैं x इंटू ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको ये दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तो प्लस और माइनस के साथ दो यूनिट वेक्टर मिलेंगे, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 1/√3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, these are two unit vectors which are having same angles with u vector, v vector and w vector. Got it carefully? तो इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ईच एंड एवरी टर्म अच्छे से देख लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Now look at for question number 26. Find the acute angle between the curves y is equal to x square and y is equal to x cube at their point of intersection. यानी दो कर्व्स में का एंगल निकालना है जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और उनके जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे अगर वो दो कर्व्स का एंगल निकालना है, मतलब we have to find angle between the tangents at that point of intersection। यानी जहां पे वो दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे अगर हम टैंजेंट निकालते हैं, कर्व्स के टैंजेंट निकालते हैं, तो उनका जो एंगल है that angle is said to be angle between that curves। angle between tangents at the point of intersection is nothing but angle between the curves। कर्व्स में का वो एंगल होता है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन, इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी टैंजेंट के स्लोप निकालना है हमें। अब ये वेक्टर में क्यों आया है, तो ये लाइन से रिलेटेड है। tangent to the curve at point of intersection is nothing but one line, and line has an equation, and once we get equation of line then we can find its direction ratios or direction cosines, and using the direction ratios we can find angle between that two lines। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं, तो वही हम यूज करेंगे। क्यों, तो अगर आपको वेक्टर भी यूज करना है या इक्वेशन ऑफ लाइन भी यूज करना है, तो भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए आपको उसका स्लोप निकालना जरूरी है, और स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव्स यूज करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, व्हाट इज द कंसेप्ट। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है जिसमें स्लोप ऑफ टैंजेंट हमने फाइंड किया था। तो इसमें पहले हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व्स, गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व्स आर y is equal to x square and y is equal to x cube। अब ये दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इनको सॉल्व करना पड़ेगा। Therefore, to find point of intersection, to find points of intersection, इनको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, तो therefore हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। therefore x square into bracket 1 minus x is equal to 0। therefore x
इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू आएगी टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू आएगा 0 और y इज इक्वल टू आएगा 1। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर points of intersection of curves are O0, 0 and another point is P1, 1। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए। एक ओरिजिन मिलेगा 0, 0, दूसरा 1, 1। दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे लगता है इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, जस्ट सॉल्व दैट टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम एक एक पॉइंट निकाल के हम पहले डिफाइन करते हैं यहां पे कि एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स is same that of angle between tangents, angle between tangents at their point of intersection, at their point of intersection। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टैंजेंट्स की स्लोप निकालना है। नाउ नंबर 1 फॉर O0, 0 इस पॉइंट के लिए। नाउ पहला इक्वेशन कर्व का इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस ऑफ कर्व आर y is equal to x square and y is equal to x cube। differentiate them with respect to x, dy by dx is equal to आएगा 2x and इधर dy by dx is equal to आएगा 3x square। therefore dy by dx at point O is 2 into 0, that is nothing but 0, and dy by dx at O is nothing but 3 into 0, that is nothing but 0। therefore slopes of tangents at O0, 0 are m1 is equal to 0 and m2 is equal to 0। x की वैल्यू अगर O के कोऑर्डिनेट 0, 0 है तो x की वैल्यू 0 हो गई, वो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट की टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ dy by dx एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के लिए dy by dx की वैल्यू निकालो, आपको उसका स्लोप मिलेगा। अब m1 और m2 दोनों 0 आए हैं, it means we can say that m1 is equal to m2, means we can say that tangents are parallel to each other, tangents are parallel to each other। और अगर tangents parallel है तो एंगल बिटवीन देम क्या हो गया? therefore angle between tangents is 0। therefore angle between curves at O is 0। O के पास जो एंगल बिटवीन कर्व्स है वो 0 मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड फॉर P1, 1, फॉर P1, 1 इसको हम लिखेंगे इक्वेशन A
फ्रॉम इक्वेशन ए dy बाय dx तो हमने निकाला हुआ है, तो dy बाय dx हम यहां पे यूज करेंगे, dy बाय dx एट p। तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहां पे 1 है, तो x की वैल्यू 1 यहां पे रखो, तो 2 into 1 that is nothing but 2, and dy by dx at p is 3 into 1 that is nothing but 3. Therefore we can say that slopes of tangents to the curve at p1, 1 are m1 is equal to आएगा 2 and m2 is equal to 3. अब जब दो लाइंस के हमें स्लोप पता है तो उनका एंगल बिटवीन टैंजेंट्स हम निकाल सकते हैं. Therefore angle between tangents is given by tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Angle between tangents is m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Therefore tan theta is equal to आएगा mod of m1 की वैल्यू है 2 minus 3 upon 1 plus 2 into 3. तो tan theta is equal to आएगा mod of 1 by 7. 1 second. तो tan थीटा की वैल्यू है mod of 1 by 7, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 by 7. आपको जैसे वेक्टर में ये क्वेश्चन है तो हमें cos थीटा cos इनवर्स में इसका एंगल निकालना पड़ता है, तो नाउ यूज करेंगे हम sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, that is nothing but equal to 1 plus 1 upon 49. तो sec थीटा की वैल्यू क्या आती है, देखिए sec थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 49 प्लस 1 50 अपॉन 49. इसको स्क्वायर रूट निकालिए, sec थीटा इज इक्वल टू आएगा 5 रूट 2 अपॉन 7. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 7 अपॉन 5 रूट 2. तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 5 रूट 2. समझ में आया? इसकी जो दूसरी मेथड है आप डाइजेस्ट में भी देख सकते हो, या आपको मैं समझाता हूं. जैसे हमने स्लोप निकाले, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पे से आप दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं. और एक बार दोनों लाइंस के इक्वेशन निकाल लिए तो दोनों लाइंस के हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, बिकॉज बोथ लाइंस लाइज इन एक्स वाई प्लेन. तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें मिलते हैं, एक के 1,2 मिलेंगे 120 और दूसरे 130, तो उसका यूज करके हम cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो. या यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन आपको वेक्टर्स में बताया हुआ है, इसलिए इसको हमने cos इनवर्स में निकाला. इसको tan इनवर्स में भी निकालते हैं, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 by 7, ये एंगल बिटवीन दैट टू कर्व्स मिल जाता है. तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बिटवीन कर्व्स, फाइनली आंसर आप वर्ड्स में लिखो कि एंगल बिटवीन कर्व्स एट P इज cos इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 5 रूट 2. समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसको नोट कर लीजिए. आज के लेक्चर में इतना काफी है. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.